कि आपको रंग दे बसंती 10 साल बाद ऐसा कभी लगा आपको 10 साल में आपको? सच सच बोलो कि ऐसे? एकदम सच। एकदम सच। ओके। मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता है कि अ, जो हमारा काम होता है वो कभी पूरा होता नहीं, हमारे हाथों से छीन लिया जाता है। और थोड़ा मौका और मिलता तो इसको थोड़ा और कुछ करते, थोड़ा ये करते, थोड़ा वो करते, तो वो फीलिंग तो हमेशा आती है। बट वो किसी भी आर्टिस्ट को आएगी, भले वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, पोएट हो। बट कई चीजें, ये कहने के बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक बार हो जाती हैं, तो उनको चाहे आप जितना रिवाइज कर लो, वो वापस शायद उनमें वो पहली वाली बात ना हो। तो दोनों चीजें सच हैं। आपका उस टाइम मेंटल सिचुएशन क्या है, तो तभी पता चलता है। तो रंगदे के साथ साथ कई बार हुआ है, हमारी ये फीलिंग आई है कि इसको थोड़ा यहाँ से छोटा करते, थोड़ा बड़ा करते, इसको ऐसे करते, वैसे। जैसे कि आपने बताया कि आमिर ने काफी वक्त लगाया फिल्म को साइन करने के लिए और 20 साल देने के लिए, तभी आपको उस दौरान ऐसा भी लगा कि आमिर के बगैर भी बन सकती है या कोई ऑल्टरनेटिव था आपके पास? आई आई थिंक आपने वो, मैं क्लियरली बता नहीं पाया आपको, 20 मिनट में आमिर ने हाँ बोल दिया। मेरी तरफ से बनाने में 18 महीने और लगे थे, उनको वेट करना पड़ा था, पर वो वेट किया था उन्होंने। 20 मिनट की नरेशन थी, 25 मिनट की, और उसमें हाँ हो गई। हाँ मतलब हम दोनों समझ गए थे कि ये फिल्म कर रहे हैं, और अब नेक्स्ट लेवल क्या है, कैसे करना है, कब शूटिंग है, वो एकदम शुरू बात हो गई थी वो उस। और वो सिर्फ आमिर के साथ ही नहीं, हम सबके साथ ही ऐसा हुआ था। Uh, Hi Rakesh, this is Shankhan from the Hindu. Hey. Hi, hi. So this defining image of as we see in the poster, Yeah. so this sort of defines Rang De Basanti in our minds, and it's so sort of Yeah. become an iconic sort of. So how did you decide to make this shot the poster? I mean, Uh, See, it was very organic. There was no decision. Uh, in fact, uh, uh, Ronnie liked the image, and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. यार इसमें आमिर खान की शक्ल नहीं है, तुम मेरे को पीट क्यों दिखा रहे हो? तो ये कैसा हो गया था, तो हमने कहा सही है, हमारा पोस्टर 2 भी था, दिस वाज द टीजर, कि हम टीज करें लोगों को। और एंड फर्स्ट वुड बी द बैक्स, एंड देन दे वुड टर्न अराउंड in the next poster. So we, ये होता है, it was a strategy. But teaser poster came back to us. And then मजे की बात ये है कि when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000. So Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media. Uh, and then it kind of stuck on and became cult. so one more thing related to music, like choice of couple of singers, like Mohit, this is before he became the star that he became, and Daler sort of for the title song. How were those decisions? Whose were they? Yours and AR's together, or Rasool was also sort of? It's not important. So I still remember uh, Dalir Paji came for the title song, and Rahman being Rahman, he was inside his room, and nobody could go in. And myself and Prasanji were outside, and he started speaking to Prasanji, and he ordered an elaborate dinner. He said ये तो इटालियन है क्या? तो I was quiet for 1 hour. Then he told, ये कोई इटालियन बंदा बैठा है, कोई डायरेक्टर, मेरे बाल लंबे होते थे उसमें। सही। अब उनको अंदर से गुस्सा आने लगा कि यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये मेरे कमरे में बुला के नहीं दे रहे मान मेरे को गाना गाने के लिए। और Deman was doing the tune better and better.
3-4 घंटे हो गए, somehow Prasanji is keeping him calm. और फिर I started speaking in Hindi from Italian, and you will not believe it. He went into the room when the song was ready. In one single take, start to finish, he nailed the song. One single take. Wow. That was It's really amazing. No, he actually felt that, I don't know how these guys are working because I mean, because I was also we working on the script also, talking various things, and he was there. He first was taking interest and he ordered food. After that, he went off to sleep, and suddenly AR does like that. Suddenly he said, "Let's record," and he was sleeping, so we woke him up, and we were thinking like he will be able to. Now it'll take a lot of time, it seems. He went there, and that we must give to Dilip Pali, that he went there and just one take he gave us the whole song. So it was wonderful. I think that's what the talent is. And Mohit, here is we worked earlier, and when we were talking about this song, and I think AR also likes Mohit's voice. He's already heard, and then I think ideas met. Rakesh ji, me, AR, I think jointly decided that we should. And since I know Mohit very well, so I was the one who made the call, and he was next day there and he recorded Khoon Chala. So I think it is all collaborative and a joint decision. But we are very happy that all this came together, and Mohit really added a great dimension to the film. Thank you, Mohit. या प्रसन्न जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है 10 साल हो गए, तो मोहित को फोन लगाया कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मोहित सुबह की जो पहली फ्लाइट थी कुछ लेट कल को रात को, वो सुबह सुबह पहुंच गए, पर हम तो रात को काम करते हैं वहाँ पे, और 6:30 बजे 7:30 बजे पैकअप होता है। हम आप पैकअप करके अपने होटल जाके सो गए, आए 8 बजे की स्टूडियो खुलेगा, कुछ होगा, रिकॉर्डिंग होगी। आई रिमेम्बर देन वी रिकॉर्डेड दैट इवनिंग, and when the voice came out and he sang, it's like when you're made for each other. That song was made for Mohit, and Mohit was made for that song, and it just happened. Faridun from Bollywood and Nama. Congratulations to the entire team for a fabulous film. Amir, my question is to you that the entire candlelight movement that started with the Rante Vasanti and later just percolated into real life as well with the entire Jessica Valmert case and many other cases. How do you look back at that particular? आई थिंक ये फिल्म का जो असर हुआ बहुत गहरा हुआ ऑडियंसेस पर, और एक बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म लोगों के जहन पे छा गई, उनके जज्बातों के साथ घुल मिल गई। तो लिहाजा आई थिंक perhaps that was the first time that there was a पहली दफा हुआ कि लोग बाहर निकले अपने घरों से और उन्होंने किसी चीज के लिए एक होके आवाज उठाई। तो ये फिल्म की ये फिल्म का कमाल है कि फिल्म का इतना गहरा असर हुआ न सिर्फ हम लोगों पर जिन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हमारी ऑडियंसेस पर भी। One question to you about Khoon Chala, the song that you wrote. I think very, very powerful lyrics somewhere. How do you look back at Khoon Chala? So Khoon Chala is a very special song. I still feel that एक लाइन मैंने लिखी थी, ले गाढ़ी उम्मीदें, वो गाढ़ी वर्ड में यूज नहीं कर पाया, लास्ट तक मैं सोचता रहा ये मैंने डालना चाहिए था वहाँ पे, बट everything else, it's Faridun about poetry, so you will always remember this song like this, because Faridun comes from a great tradition of poetry, and I think it's अगर आप उस मेरे लिए सॉन्ग का टेस्ट होता है कि अगर आप उसको एक कागज पे लिख के, कोई म्यूजिक ना हो, कुछ नहीं हो, वो रखा हो आपकी टेबल पे, क्या आप उसको दोबारा पढ़ेंगे? क्या उसमें केडेंस है, मीटर है, रिदम है, कल्पना है, लेयर्स हैं? मुझे लगता है ये गाना एक कविता की हैसियत से, एक शायरी के हैसियत से क्वालिफाई करता है। ये वन ऑफ दोज सॉन्ग्स व्हिच आई फील हैज इसका अपना वजूद है एक कागज पे, और वो इस गाने की खासियत। हरी मृदुल, ये मैं फरीदुल के सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह के शब्द पहले हमारे पास सुने नहीं गए थे फिल्मी गीतों में। आपने क्या जद्दोजहद आपके मन में थी, क्या आपके मन में ये था कि
कुछ नए शब्द देने हैं, या यही शब्द सटीक होते थे, चाहे मोल में हो, चाहे कूचला हो, अन्य जो भी हैं शब्द? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई चीज़ों के लिए मैं आमिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे मेरी परवरिश फिल्मी गानों पर नहीं हुई। मैं उत्तराखंड से मेरी पला बढ़ा, और मेरे घर में फिल्मी गानों का बिल्कुल ही रिवाज नहीं था। हम लोग फिल्मी गाने नहीं सुनते थे। मेरे पेरेंट्स दोनों क्लासिकल म्यूजिशियन थे, दोनों ने मास्टर्स किया है म्यूजिक में, और हम लोगों को ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक सुनने को मिलता था। और फिल्मी गानों का कैसेट या कोई कहीं सीडी ऐसा, और सीडी तब होते भी नहीं थे ऐसा कुछ। तो मेरी जो वोकैबुलरी थी, मेरी शब्दावली थी, उसमें दिल जिगर जानम नहीं था। और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं इस तरह के गाने लिख सकता हूँ। और मैं अपनी तरह से कविता पढ़कर बड़ा हुआ। और जब मैंने लिखना शुरू किया, राकेश जी को मिला, और कुछ और ऐसे हैं, इवन यश जी को और आदि को, कि उनको लगा कि ये कुछ नयापन है, कुछ फ्रेशनेस है। मेरे शब्द कुछ अलग तरह के थे। तो मुझे लगता है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब का, जिन्होंने मुझे दिल जिगर जानम से मुख्तलिफ जो मेरी एक पहचान थी उसे पनपने दिया, और उसे प्यार दिया। तो पौधा तो वही पल बढ़ सकता है जिसको आप सींचें। तो मुझे सींचने के लिए एक धरती और धरातल और एक उर्वर भूमि जिन्होंने दी, उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। Good evening, Amir. Amir, hi. Amir, my question is to you. You said this film has changed you. So, is there any message in this film that resonated with you, that has stayed with you? जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीजें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी जिंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज में क्यों पढूं। अक्सर हमारा ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जब होता है ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, न सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का, कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है, और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है। Amir, it must be asked a question. Your remark on intolerance has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So, what is your reaction to that? To how everybody else has taken your statement? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता। तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो इस पर कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा,
ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज्यादा मैं रह नहीं पाता। आई गेट होम सिक, मुझे वापस आने की जल्दी होती। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ जी। और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ। अगर इनका आप काम देखें और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है। आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीं पर देखते हैं, आप रंग दे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं। मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नजरअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। That's when you also worked with him on the Incredible India campaign. जी। Which you're not, so what are your thoughts about him no longer continuing as the ambassador? ये वो कंटिन्यू करेंगे या ये डिसीजन हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि Can I add come in here? मैं दिल्ली चेयर शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास। When I got the first 3 Incredible India ads to do, and I got the call from ministry, and I called him, Prasun ji आप लिखेंगे? He said हाँ बिल्कुल। And car journey used to be 2 hours every day going to the location. I called him, आमिर इंडिया के लिए करना है। He said मेरा बिल्कुल एकदम सही है। No question asked, nothing. So I think I've answered that. Let's not go into No, मैं इसका आंसर your नहीं, नहीं, मैं fears. इसका आंसर They are कर your दूँ। fears. You'll have to sort them out yourself. देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन कोई पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। आमिर आपसे ये सवाल है कि आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है, जो लेटेस्ट है वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पे? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये 2 चीजें सबको बताई गई, तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज होंगे। तो जो लोग नाराज हुए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं कि वो नाराज हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है और आपके जरिए मैं ये आज साफ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं, कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक
कल्चर है, अपनी एक जबान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा कि इस देश को हम कमजोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज कही है कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूं इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूं, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा, ना मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं। मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीजें और याद दिला दूं। देखिए, मैं कहूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूं, उससे कुछ फर्क, उसका कोई मायने नहीं। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविजन शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूं, सत्य में जयते, क्या जरूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूं, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूं, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूं, कुछ मैं पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कहूं या मतलब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूं। मेरे एक्शंस किए हैं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से मेरे एक्शंस किए हैं, वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूं, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उस खानदान से मैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट में इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए। That you should not make such bold statements, and every country has problems, and we must look at the good things as well. Yeah. So he said that. Yeah, you know, that's what I'm saying to you. People don't know what I've said actually. क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज बताई नहीं गई। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊं देश से, तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊं। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलतफहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई?
और खासतौर पे अब जो माहौल है देश में इंटॉलरेंस भी उठा है, प्लस पेट्रोलिज्म को लेके भी हम काफी चीजें उठाने लगे हैं। मतलब ये इंटॉलरेंस बड़ा एक फैशनेबल वर्ड हो गया, इसको हम ऐसे यूज करने लगे जैसे कि मतलब भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट आ रहा, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना तो खाना हजम नहीं होगा। So I think nothing like that. We're a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Earliest I remember Shaivites and Vaishnavite there was a blood path between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So it's when intolerance की बात नहीं होती है. Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that, they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है. रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं. और मतलब कुछ कर मैं ना सोचना पड़ेगा. कमलेश जी, ये तो आप प्लीज आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू. नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है वहाँ, वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, और स्पिरिट की बात है. उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है. मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आजाद, वैसे हम लोग वापस आ जाए. वो बात बन सकती. राकेश जी here. Amir, my question. राकेश जी. Amir, recently in an interview of Sunny Leone, you become quite popular on the social networking side, and you Sorry, written in who is one that? report. Sorry, raise your hand. Yes. Yeah, so नहीं पूछते तो है बच्चा. हाँ नहीं, sorry, no, I couldn't see her. Will you introduce yourself, please? Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. For Amir actually. We are all hearing, यार, सब लोग कान बंद करो. So you tweeted in one report. So I just want to know that if in future, would you want to work with her, or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा किस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे. मुझे तकलीफ हुई और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिला. उनका जवाब था शायद नहीं. वो बात भी मुझे लगी. मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही है वो. तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने में. उनकी जो पर्सनल लाइफ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. वो एक इंसान है, वो एक औरत है और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा. मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे. ये भी बात. एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि देखिए किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई जरूरी नहीं. और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए. मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट के नाम पे कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं. कोई व्यवसाय जो है वो जरूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो. तो क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो. लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है. जहां तक बात रही जब वो मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं.
क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा। At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society, we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, Rakesh, Rakesh, I have a question for you on the film. I remember reading a conversation, an interview of Manoj Bajpayee, where he said that he was in the running for Amir's role, and he had to drop off the project because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj on, because we share a very, very deep bonding since it was our first film, and then you worked on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, it's he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years, and we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything, and then it happens. So that's the thing. Yeah. Amir, no one doubts your patriotism. We all know that you're a proud Indian. We're proud of you. One person whose name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened. More or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that. And she made me realize that in no uncertain terms. But, I have to say, जैसे हम लोग, बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, कि हमारा देश जो है वो इतना अलग-अलग प्रांत है, अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग मजहब हैं इस देश में. तो आप मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए. मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है. जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं. फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है. मेरे जो कजिन है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ. जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम है. तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा. मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा. एंड as I always look at myself as an Indian. मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं. हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते. I'm first a human being, I'm first an Indian, and I always will be. Hi Amir, this is Urvi here to your right. Urvi, हाँ, Urvi. Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today, जी. and he was a co-star, and he was there in the film. So have anybody spoken to him and have you congratulated him yet? I didn't get to know. You're just telling me for the Very first time. much. Immediately, he's in Jaipur right now. Definitely congratulate. And he's missing the evening. I think I met him yesterday, so he did inform me that So he has to be. very warm congratulations to Anupam. 3 cheers for Anupam ji. आमिर, कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंगे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी, बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था. आखिर में भी वो आई. तो अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर, या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें. कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूंगा. आप सबको देना चाहूंगा. देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा गणतंत्र दिवस की. और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी नहीं है. हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की हैं.
मैं शायद भूल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा। हाँ, है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हम सभी थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो we always feel like this is my life-changing film. So which one was yours life-changing film? You know, मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है। मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, 3 इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया। लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर। मुझे बहुत कुछ समझ में आया जिंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में। तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर। ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे। कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर। That's the last question. Sorry.